السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو جانی عزیز ناول پہ۔ آج جانی عزیز کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہوتا رہے۔ چلیے سٹارٹ کرتی ہیں۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا ڈارلنگ پہ جو ہے نا اس پہ حملہ ہو گیا تھا۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ تھا۔ اس سے کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک تو ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی صاف واضح تھی۔ پتہ نہیں عجیب تاثر دیتا ہوا وہ کاٹیج کے اندر داخل ہوا۔ سب ڈارلنگ کے لیے پریشان تھے، لیکن میرب صرف پریشان نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ایک وجہ ڈارلنگ کی زخمی حالت تھی اور دوسری اپنے شوہر کی پناہوں میں کسی اور لڑکی کا وجود۔ اگرچہ اسے اریال سے محبت نہیں تھی، لیکن یہ بات اسے بہت زور سے چبھی تھی۔ اس نے ڈارلنگ کو بیڈ پہ لٹایا اور نینا کو اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے کہا، جبکہ میرب نے یہ ذمہ داری خود قبول کی، کیونکہ چند ماہ تک وہ ایک ہسپتال میں بھی کام کر چکی تھی۔ لوگوں کی پٹی کرنا اور زخم دھونا وہ بخوبی جانتی تھی۔ ان دنوں کو ڈارلنگ کے ساتھ اکیلے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے نظر طاہر پر پڑی۔ اس کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ دنتناتا وہ اس کا گریبان پکڑ کر یکے بعد دیگر نہ جانے کتنی چپیڑے، گھونسے اور ٹانگیں مار مار کے اسے لو لہان کر گیا۔ خان اور تمیز چھڑواتے رہے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اپنے بھائی کی چیخوں کی آواز پر نینا کمرے سے باہر نکلی تو اس کا بھائی سامنے خون میں لت پت پڑا دکھائی دیا۔ ہاں طاہر، یہ کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کی طرف لپکی اور جھنجھوڑنے لگی۔ یہ کیا کیا اسے؟ ٹائیگر مارا کیوں؟ اس کی آواز جوش سے بھرپور تھی اور اس وقت وہ اریال کے روبرو کھڑی تھی۔ شکر کرو کہ میں نے اس کی جان نہیں لی، ورنہ جو حرکت اس نے کی اس کے بعد اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اس کا ایک ایک لفظ تناؤ سے بھرپور تھا۔ کیوں ایسا کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ آواز نیچی رکھو نینا۔ تمہارے بھائی کے کہنے پر ہم تمہارے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے ڈارلنگ کو مصیبت میں ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ خود ڈارلنگ کو جانور کے حوالے کر کے وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ گھبرایا تو نینا بے یقین ہو کر دیکھنے لگی۔ جب بدلہ لینے کی اوقات نہ ہو تو اچھلنا بھی نہیں چاہیے۔ سر توڑ باتیں سناتا وہ ایک طرف نکل گئی۔ اس نے اپنے زخمی بھائی کے وجود کو فرش پر لیٹے دیکھا جو اب آنکھیں کھول چکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا طاہر، مجھے ٹائیگر کے سامنے شرمندہ کرواتے۔ اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے وہ الٹا اپنے لفظوں کے نکلے تیر چلاتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ انسان چاہے میری طرح بہادر نہ ہو، پر اسے بزدلوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تمیز نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، اور وہ بھی چلتا بنا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ لیکچر ختم ہوتے ہی جب سہل کلاس سے باہر نکلی تو روحان بھاگ کر اس سے مخاطب ہوا۔ لڑائی تم نے بھی کی تھی، میں نے نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ تم نے بھی تو غلط بات کی تھی نا۔ جب تم نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے تو پھر میرے پیچھے آنے کی وجہ؟ اس کا نخرہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، مان لیا کرو میری ہی غلطی ہے۔ مجھے تم پر زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو۔ پر ہمارا تو بریک اپ ہو گیا تھا یار، غصہ تھوک بھی دو، پیچ اپ تو ہو سکتا ہے نا۔ اب جب تک تم میرے بھائی کے لیے کوئی سولٹ اسٹینڈنگ نہیں لوگے میں تمہاری کسی بات پہ نہیں آنے والی۔ روحان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تہذیب سنجیدگی سے گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹا۔ یار میں کرتا ہوں کچھ، جلدی کرو روحان پلیز۔ تمہارے بھائی تمہارا کوئی رشتہ تو نہیں دیکھ رہے نا جو تم اتنی جلدی؟ ہاں دیکھ تو نہیں رہے، لیکن کیا پتا میری پڑھائی کے مکمل ہوتے ساتھ ہی میری شادی کرے، تب تک کی تب دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمارا ریلیشن خراب مت کرو۔ اچھا رات کو مووی دیکھنے چلیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی بھائی گھر پر نہیں ہے تو چل۔ اس نے خوشی سے کہا تو روحان کا چہرہ بھی گھلا۔ چلو پہلے کیفیٹیریا میں چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ چلو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ شانہ بشانہ چلنے لگی۔ سبھی لوگ ہیلی کاپٹر سے شام کو واپس برلن پہنچے۔ اریال طاہر کو اپنے ساتھ لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن نینا کی ضد کی وجہ سے لانا پڑا۔ میرب بھی سارے راستے خاموش بیٹھی تھی۔ ڈارلنگ کو اس کی گود میں دیکھنے کے بعد اس نے اریال سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ڈارلنگ کو پہلے ہسپتال پہنچایا، تمیز کو ساتھ رہنے کا کہہ کر اس نے نینا کو اپنے بھائی کو گھر لے جانے کو کہا اور باقی ٹیم کو بھی چھٹی دے دی۔ اب سارا کام اور مصروفیات اگلے دن پر ڈال دی گئی تھی۔ اس نے زیمل کو گھر میں سے کسی کو بھی اپنی واپسی کا نہیں بتایا۔ کیب بک کروائی تو اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھی میرب تب بھی خاموش رہی۔ وہ اس کی چپ کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ گھر کی بیل بجی تو زیمل نے کانوں میں ہینڈ فری لگایا، کچھ گنگناتے ہوئے دروازے کا جب سامنے نظر پڑی تو اریال کھڑے سے گھور رہا تھا۔ اس نے جھٹ اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر ہاتھوں میں لیے پشت پر چھپا دی۔ بھائی السلام علیکم۔ ڈر کے مارے بیچارے کے الفاظ بڑی مشکل سے ادا ہوئے تھے۔ کانوں میں ہینڈ فری لگنے کی وجہ سے جو پچھلی بار تھپڑ پڑا تھا اس کی سنسناہٹ اب بھی تک کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر جواب دیا اور گھر کے اندر چل دی۔ زیمل حیران تھا کہ اس نے آج کچھ کہا کیوں نہیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ میرم سے وہ تھوڑا جھک کر ادب سے مخاطب، ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑا ہی فرماندار بننا چاہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے ایک مسکراہٹ پاس کی اور اریال کے پیچھے چل دی۔ بوا سہل وہ گھر میں ادھر ادھر نظر گھماتا پکار رہا تھا۔ بھائی وہ بوا 2 دن سے کام پر نہیں آ رہی، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو ہم نے چھٹی دے دی۔ اور سہل
बहन के बारे में बताते हुए वो कुछ सोच में पड़ गया। आंखें दाएं से बाएं घुमा रही थी जैसे वो कोई बहाना तलाश करने की कोशिश में हो। अगर भाई को बताती कि वो रेहान के साथ मूवी देखने गए तो भाई पता नहीं इसके साथ क्या करें। वो अपने जहन में खुद से हम कलाम हुआ था। कुछ पूछा है मैंने, सहल का? इसने गुस्से से कहा तो अचानक ऊपर देखने इसी लम्हे मीरब खामोशी से इसके पास से गुजरते हुए कमरे में चली गई। अरियाल ने एक सरसरी निगाह इसके जाते वजूद पर डाली और फिर से अपने भाई को देखने लगा। भाई हाँ, वो इसकी किसी दोस्त की तबीयत खराब थी तो इसका पता लेने गई है। कौन सी दोस्त? इसने निगाह इसकेड़ी। वो इसी की एक दोस्त है, रुमैसा। एक बात मेरी कान खोल कर सुनो जीमल, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो आज बहुत मार खाओगे। इसने साफ अलमाज कहा तो वो अपने हलक में कड़कड़ाहट का एक घूंट उतार गया। अरियाल ने एक तरफ होकर लान में जाते झट सहल का प्रिंसिपल का नंबर मिला और रमेशा का नंबर लेकर इसे कॉल। इसने इसी पर रमेशा मोबाइल हाथ में पकड़े स्क्रॉलिंग कर रही थी। जब स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखा तो थोड़ी कंफ्यूज लगी, लेकिन फिर कॉल रिसीव की। हेलो जी, कौन? मैं अरियान हूँ, आपकी फ्रेंड सहल का भाई। लहजा संजीदगी से भरपूर। क्या आप? वो खुशी होते हुए सीधी हुए। आप बीमार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल। आपको मेरी फिक्र हो रही थी। क्या मेरी बहन आपके घर पे? इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मध्य बन सहल नहीं तो वो इस वक्त यहाँ क्यों आएगी? ठीक है, लेकिन आपने मुझे इसकी बात अधूरी रह ही गई थी क्योंकि वो कॉल काट चुका था। अरियाल ने वापस लाउंज का रुख किया जहाँ जीमल टेंशन में बैठा कर दिखाई दिया। तो तुम कह रहे थे कि अपने दोस्त के घर गई? अरियाल की रोबदार आवाज़ पर इसने चौंकते हुए देखा। भाई वो मुझे तो इसी ने यही बताया। सच्ची प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है भाई। मैंने तो बस आपको वही बताया जो मुझे सहल ने कहा था। इसके टूटे फूटे अल्फाज सुनकर वो तेवरी चढ़ा गया। बदकिस्मती से इसी लम्हे सहल घर में दाखिल हुई और अरियाल पर नज़र पड़ते ही इसके पैरों से ज़मीन निकल गई। आओ, वहीं क्यों रुक गई? इसने तमियाने से बोला तो एक कदम फूंका रखते हुए वो आगे बढ़ने लगे। खौफ के मारे चलना भी मालता, अंदर से इसका पूरा वजूद कपा रहा था। कहाँ गई थी? भाई दोस्त की तरफ गई। इसने कंधे पर लटकाए हुए पर्स को मेज़ पर रख कर कतराते हुए कहा। रुमैसा? जी भाई, लेकिन मेरी से अभी बात हुई। इसने कहा तुम इसके घर नहीं। अपने भाई की आंखों में उठता कहर देकर इसका जवाब सुनकर इसे अपना गला खुश्क से खुश्क तर महसूस होता हुआ वो चंद कदम इसकी तरफ बढ़ाकर मजीद करीब हुआ। सच सच बताओ सहल, रात के इस वक्त कहाँ गई थी तुम? अपनी पैंट की जेबों में हाथ धंसाए इसने ठंडे ढार लहजे में पूछा तो सहल का बोलना भी मुश्किल हो गया। इसका पूरा वजूद सर्द पड़ने लगा। इसका तो तमाम कर दें आज भाई, जीमल मुंह में बड़बड़ाया। जभी मीरम कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। इसने अरियाल को सहल के इतने करीब और इसका चेहरा घूरते पाया तो दाल में कुछ लगा लेकिन किचन से पानी का जग लेकर अभी वो फिर से कमरे की जाने बढ़ ही रही थी कि जब अरियाल की जोरदार आवाज़ गिरची। मैंने पूछा कहाँ गए थे और किसके साथ? सहल के साथ साथ मीरम भी सहम गए थे। वो इसके सामने बिल्कुल नजरें झुकाए खड़ी थी, कहने के लिए कुछ नहीं था। मीरम ने इसके कांपते हुए हाथ देके पानी का जग एक तरफ टेबल पर रखते हुए मंजर को देखने के लिए वहीं रुक गई। मोबाइल तो अपना? जी भाई। सहल ने निगाह उठाई तो नैन पानी से भरे हुए थे। मीरम को इस पर तरस आने लगा लेकिन मुकाबिल को नहीं आया था। मोबाइल मांगा है मैंने दो। वो फिर से चीखा तो इसने पर्स से झट अपना मोबाइल निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। सहल घटी घटी सी सिसकियाँ भरने लगा। अरियाल इसका मोबाइल चेक कर रहा था। जीमल ने करीब जाकर मीरम के कान में सरगोशी की। भाभी प्लीज़ सहल को बचाने। एक्चुअली वो किसी रूहान नामी लड़के को पसंद करते, इसी के साथ मूवी देखने गए तो इसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई आज वापस आ जाएंगे। भाई को इसके बारे में पता चल गया, इस तो इसे जान संभाल। प्लीज़ आप कुछ करें। इसकी बातें सुनते मीरम पूरे नैन फाड़ कर देखने लगी। प्लीज़ भाभी, माना कि मैं इसे बहुत लड़ता हूँ और मुझे अपनी बहन का बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगती कि मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरता देखूँ। वो धीरे धीरे कहता मिलते कर रहा था। इससे पहले कि मेरे कुछ बोलते अरियान ने पूरी कुव्वत से सहल के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ सीध के वो फर्श पर जी करी। तुम इस लड़के के साथ गई थी? वो थप्पड़ मारते साथ ही फंकारा तो मीरम ने पूरा मुँह खोला और फौरन इसकी तरफ लपकी। सहल उठो। सहल इसके बाजू को पकड़े हुए इसे उठा गई। अरियाल फिर से दंतनाता इसकी तरफ बढ़ा तो मीरम की पुष्ट पर पनाह तलाश करने लगे। क्या कर रहे हैं आप? जवान भर पर कोई हाथ उठाता है कि? इसने इससे पीछे छुपाते हुए आगे बढ़कर कहा। तुम बीच में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी। मीरम समझी आंखों में उतरा हुआ गजब लिए वो कलाई से थामते इसे एक ही झटके में रास्ते से हटाकर चलेगा। सहल खौफ के मारे अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के दोनों तरफ रख गई थी। रात के इस वक्त क्यों गई थी इसके साथ? तुम्हारा रिलेशनशिप काफ़ी देर से चल रहा है ये मैं जानता, लेकिन ये नहीं जानता तो तुम इस हद तक पहुंच जाओगी। इसके बालों को अपने मजबूत हाथ में जकड़े वो मुसलसल एक ही लहजे में बात कर रहा था। गुस्से से इसकी बड़ी आंखें मजीद बाहर आने को थी। भाई मैं बस मूवी देखने गई थी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इसका रंग पीला पड़ चुका था। वो मुश्किल बोलती मूवी मैं दिखाता हूँ तुम्हें भी, प्लीज़ छोड़ दें भाई। वो बेचारी चीखी मगर इसे तो अपनी बहन पर रहम नहीं आता। कोई इतना जालिम कैसे होता है? जैसे वो अचानक इसके बालों को छोटा हुआ अपने कमरे में गया और जब वापस आए तो इसके हाथ में पिस्तौल देकर सभी काम उठे थे। नहीं आ रहे ये आप क्या करें? मोहब्बत करना जुर्म नहीं। आप बहन की जान कैसे ले सकते? मीरम तेज़ी से भागकर इसके सामने हुए थी। डोंट वरी, इस पर अभी गोली नहीं चला रहा, बल्कि मैं अभी इस वक्त रूहान को यहाँ बुलाऊंगा। इससे पूछूंगा कि वो निकाह करना चाहते हो ठीक है, वरना सहल का निकाह और अभी इसी वक्त इससे होगा जिससे मैं चाहूँगा। अपने फैसले ने से सबके सरों पर पहाड़ तोड़ा था। सबसे बड़ा झटका तो सहल को लगा, लेकिन वो फिर भी चुप थी।
थोड़ी देर में रेहान वहाँ आ मौजूद हुआ था। रियाल ने खुद इसे बुलाया और जब निकाह करने का पूछा तो वो साफ मना कर इसने कहा वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मीरम ने बिलाक समझाया मगर वो बज़िद था। सहल के सर पर फिर से कोई नया तूफान टूट पड़ा, लेकिन अभी कुछ और बाकी था। आर्याल ने चुपचाप रेहान को जाने दिया, फिर खान और तमीज़ को बुलाकर साथ में काजी लाने का भी कह दिया। वो नहीं चाहते थे कि अब किसका निकाह है। घर पहुंचे तो आर्याल ने ड्राइंग रूम में बैठा खुद पास बैठ गया। डार्लिंग कैसी है तमीज़? बेहतर है खान, तुम्हें आज मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करो बॉस। सहल से निकाह करना होगा अभी और इसकी बात खान पर किसी क़यामत से कम ना थी। तमीज़ भी हैरान था। वो लोग क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो जान दिया जाए टाइगर। गुड। वैसे भी पहले तमीज़ से पूछता, लेकिन मुझे पता है ये ऑलरेडी डार्लिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए तुमसे कहा। मैं हाजिर। वो अपना आयत से बोला। और तुम्हें ऐसे खुश भी रखना है खान, इसका दिल जीता है। मैं पहले बता दूँ वो किसी और पसंद करती थी, लेकिन इस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं इसका हाथ किसी काबिल एतबार शख्स के हाथों में देना चाहता। तुम फिक्र मत करो दोस्त, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर पर चढ़ा कर रखूँगा। मुझे अच्छा लगा सुनकर खान, और ये कभी मत भूलना कि वो टाइगर की बने से अगर ज़रा सी भी तकलीफ हो तो समझ जाओ मुझे तकलीफ मिली, और मैं तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ क्या करता हूँ ये तुम्हें बेहतर जानते हो। इसने बातों बातों में तंबिया भी कर देता। जी बॉस जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहना। ठीक है मैं सहल से बात करके आता हूँ। उठाओ। इसके कमरे में पहुंचा जहाँ मीरम बैठी सेल के आंसू पोंछ रहे थे। जीवन एक तरफ दीवार से लगा खड़ा था। सहल अभी तुमसे काजी साहब निकाह कर पूछते हैं। मैं अपने एक दोस्त खान के हाथों में तुम्हारा हाथ देना, अपनी मोहब्बत की हकीकत तो तुमने जान ही लिया। अब चुपचाप निकाह करके हाँ कर दो, वरना ये पिस्तौल जो तुम्हारे हाथों में देख रही हो ना, ट्रस्ट में तुम पर खाली करके छोड़ूंगा। इसे वान का तवारियाल फिर जाता दिखाई दे। मीरम भी इसके पीछे भागी और पुश्ते इसकी बाजू पकड़ अपनी तरफ घूमने पर इसे मजबूर कर दिया। अरियाल आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने मेरे साथ भी यही किया था, कम से कम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करें। मेरे मामलात में टांग उड़ाना बंद कर दो। वहाँ को दिखा कहता है आप कौन होते हैं किसी की भी जिंदगी का फैसला करना? हम लड़कियों को जानवर समझते हैं आप? इसकी आवाज़ ज़रा सी बुलंद होती है। इसने करीब होकर इसकी कलाई को थाम कर इतनी ज़ोर से दबाया कि वो सिसक उठी, जिससे वो प्यार थी से शादी करना चाहिए मैंने, लेकिन इसका जवाब तुम जानती हो, और जिससे मैं इसकी शादी करूँ अपनी जान से बढ़कर इसका ख्याल रखेगा। रही बात तुम्हारी तो तुम्हारे इस सरभरे आशिक ने भी वही किया जो रेहान ने किया, धोखा दिया, टाइम पास कर। मुझे धोखे से सख्त नफरत है मेरे। अगर तुम इसके साथ होती जिससे तुमने प्यार किया, ट्रस्ट में तुम्हें अब तक ना जाने कितने लोगों के हाथ बेच चुका होता। इसके अल्फाज सुनते मेरे बस खामोश आंसू भागे। इसकी कलाई छुड़ाने पर वो रूप रोश हुआ था। इसकी निगाहों उंगलियों का निशान देखो जो इसके नाजुक कलाई पर चुपे हुए थे। अपने अश्क साफ करते वो फिर से सहल के पास चली गई। जब काजी साहब इसका निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो सहल ने अकेले में आर्याल से मिलने की दरख्वास्त की, मगर वो कमरे में आया जहाँ सहल बुत बने बैठी थी। कहो अंदाज भाई प्लीज़ मैं ये निकाह नहीं, आप जो कहेंगे जैसा कहें मैं वैसे, प्लीज़ मुझे पर ये जुल्म मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप जो सजा देंगे मुझे कबूल, पर खुदा के वास्ते मेरा निकाह मत करें, मैं नहीं कर सकती ये प्लीज़ भाई। वो सिसकियाँ लेकर बोल रही थी। शायद अब इसका दिल थोड़ा सा मोम हुआ था जो वो इसके साथ नीचे बैठ गया था। कमरे में दोनों के सिवा कोई नहीं। सहल खान एक अच्छा लड़का, वो तुम्हें बहुत खुश रखा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ठीक हो तुम फिलहाल तैयार नहीं हो तो अभी बस निकाह कर लो, फिर रुखसत ही बाद में कर दूँगा। जिससे दोनों कंधों से थामे इसने नरमी से समझाया नहीं प्लीज़ मैं ये निकाह भी नहीं करना चाहता, आप जब जिससे कहेंगे मैं निकाह कर लूँगा, मगर फिलहाल मैं किसी से निकाह नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त दे दे प्लीज़। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा जब आप कहेंगे, बस थोड़ा सा टाइम प्लीज़। सहल तुम्हारे निकाह अभी होगा और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अचानक धड़ल्ले से कहकर वो फिर से रफू चक्कर हो गया। न चाहते हुए भी इसे मीरम की तरह निकाह कबूल करना ही पड़ा। इकरार करते वक्त इसकी आंखें शिद्दत से आंसू पर रो रही थी, मगर इसे किसे परवाह थी, सब पर टाइगर की हुकूमत चलती थी। इसने बहन की बात मानकर रुखसती नहीं की, मगर निकाह हो गया था। उम्मे सहल अब सहल खान बन चुकी थी। वो रोती रही मगर निकाह कबूल कर गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। इसे नींद की गोलियां देकर मीरम अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।